Welcome, my dear students. In this session, we are going to take up some Caselet-based DI sets from SRCC GBO examination 2023. चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT and also can join the telegram group that is CAT-ZAT-MBA. Firstly, I'll share with you the questions. ठीक है, so this is the first set और 4 questions हैं. So I'll share with you the questions. Question number 1, 2, question number 3 and question number 4. So these are the questions from the first set. अब पॉज करके पहले सॉल्व करो, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखो. Okay, so let us start with the set. The caselet is saying in a college there are 2,400 students who are enrolled in any one of the 5 branches of engineering A, B, C, D and E. A, B, C, D and E are 5 branches. Total students are 2,400. The ratio of the number of boys to that of the girls is 7:5. 15% of the boys and 22% of the girls are enrolled in A. 2/7 of the number of boys are enrolled in B and so on. Information is given. Information is all about number of boys and girls in A, B, C, D and E and overall. और उसके बेसिस फिर क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो 5 हमारे ब्रांचेस हैं A, B, C, D, E. 5 branches are there and boys and girls and total. Total is 2,400. Then we know that a ratio of number of boys to that of girls is 7:5. 7:5 का रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का. टोटल इज 12 एंड 12 यूनिट्स टोटल इज इक्वल टू 2,400, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 200. सो बॉयज हो जाएंगे 1,400 एंड गर्ल्स आ जाएंगी 1,000 यानी कि 1,000. सो बॉयज विल बी 1,400 एंड गर्ल्स विल बी 1,000. Then 15% of the boys and 22% of the girls are enrolled in branch A. Branch A में 15% of the boys. So 10% of 1,400 is 140, 5% is 70. 210 boys are in section A and 22% of the girls. 20% is 1/5 यानी कि 220. 1,000 का तो 220 straight away is girls. So total 430 आ जाएंगे section A में. 2/7 of the number of boys are enrolled in B. 2/7 of total, which is equal to 400. So 400 boys are enrolled in B. A total of 500 boys are enrolled in D and E. So D और E में जो number of boys हैं, that is 500 total. 500 D और E में है और A और B में मिला के 210 plus 400 610 है. तो 610 plus 500 that is 1110. तो 290 बचे for section C. तो 290 will be in section C. Then there is a information that ratio of number of boys in D and E is 2:3. तो D और E का रेशियो 2:3 है और टोटल 500 है, यानी कि क्लियरली 200 and 300 होगा. Isn't it so? क्लियर है, 200 और 300 होगा, कोई दिक्कत. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. The remaining boys are enrolled in C, section C. वो तो हो गया अपना. 26% of total number of girls are enrolled in D. 26% 260. टोटल आ गया 460. And 120 girls enrolled in B. Total आ गया for B 520. The number of girls enrolled in C is 100 more than the number of girls in E. E से C में ज़्यादा है, कितनी 100 ज़्यादा है. C is equal to E plus 100 गर्ल्स के लिए. और कितना आ गया है ऑलरेडी हमारा 220 plus 120 is 340 plus 260 that is 600. तो 400 बचा है. C plus E is 400 and C is equal to E plus 100. तो हो गया 2E plus 100 is 400. सो E में आ गए 150 और C में आ जाएंगे 250. 250 plus 290 that is 540 and for E this is 450. तो सारी ब्रांचेस के नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल्स, ये सब हमें पता चल गया. अब क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं. क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन C एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन E. सो बॉयज इन C और गर्ल्स इन E का डिफरेंस चाहिए हमको. बॉयज इन C आर इक्वल टू 290, गर्ल्स इन E इज इक्वल टू 150. सो डिफरेंस इज 140. 140 का डिफरेंस है 140. आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
what total number of girls enrolled in B and E is what percent less than total number of boys enrolled in A and C. So girls enrolled in B plus E and boys enrolled in A plus C. Girls enrolled in B are 120, girls enrolled in E are 150, so total is 270, and boys enrolled in A are 210 and boys enrolled in C are 290, so total is 500. Question is asking girls enrolled in B and D are what percent less than total number of boys enrolled in A and C. So 270 is 230 lesser, 230 lesser है, 230 less than 500. तो percentage में this will be 230 upon 500 into 100, clearly 46%, 230 by 5, 46%. So answer will be option B. हालांकि यहाँ पे 54 भी ऑप्शन दिया होना चाहिए था, ठीक है, कुछ लोग शायद उसको मार्क कर देते, कुछ तो गलती करते, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Third is the total number of boys and girls enrolled in D is what percent of the total number of girls enrolled in A, C and E. Total number of boys and girls enrolled in D. D में टोटल कितना है? टोटल इज 460. और what percent of total number of girls enrolled in A, C and E. A, C और E में जो गर्ल्स enrolled है उनका कितना परसेंट है? तो गर्ल्स इन A, C, E कितना है? A में है 220, C में 250, E में 150. तो 220 प्लस 250 प्लस 150 दैट इज 620 और 460 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 620. तो 460 बाई 620 इंटू 100, 0 से 0 गया और दिस बिकम्स 2300 डिवाइड बाई 31. 70% कितना आएगा? 31 का 70% विल बी 31 इंटू 70, 31 का 70%, 31 इंटू 7, 2170. बचा 130 फिर भी बचता है, तो 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि 4% और 70% ऑलरेडी हमने लिख दिया है. 70% इज 2170 एंड 4% विल बी 31 इंटू 4 दैट इज 124. तो 2294 तो पहुंच गए हम. 6 बचा है विच इज 0.2% अप्रोक्सीमेटली. तो 74.2% ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या फिर ये भी कर सकते थे डायरेक्टली 75% देख लेते. 75% कितना होगा 31 का? 30 का 75% इज 22.50 और 1 का 75% इज 0.75. तो 23.25 इज 75%, यानी कि 2325 विल बी 75% ऑफ 3100. इजंट इट सो? ठीक है. सो डेफिनेटली उससे थोड़ा सा कम वैल्यू आएगा. कितना कम? 25 कम, विच इज लेस देन 1%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0.7-0.8% सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर विल बी 74.2. सो दैट वे ऑल्सो यू कैन solve it. Question number 4. The difference between the total number of boys enrolled in B and C, total number of boys enrolled in B and C and total number of girls enrolled in A and D is X. तो इनके बीच का जो डिफरेंस है that is X. Boys B और C में कितने हैं? 400 and 290, total is 690 for boys enrolled in B and C, and girls enrolled in A and D that is 220 and 260 which is 480. Difference is X is equal to 210. Next is total number of boys and girls enrolled in E is Y, यानी कि 450 is Y. Y is equal to 450. X is what percent less than Y? What percent less than Y? तो 200 is 240 lesser than Y. 240 lesser than Y. तो 240 by 450 into 100. वैसे तो क्लियरली इसमें कुछ और करना नहीं है, क्योंकि जो नंबर्स दिख रहे हैं हमको उससे समझ में आ रहा है 54% शुड बी द आंसर. 2400 अपॉन 45. ठीक है. अभी कितना आ जाएगा? 3 से दिस विल बिकम 800 by 15. ना एक सेकंड, कुछ और वैल्यू आ रहा है क्या? हाँ, कुछ और आ रहा है. ठीक है, गलत सोच रहे थे अपन. 15 5 750, तो 5 से गया, फिर बचा 50. 53.33% आ रहा है. 53% आंसर आएगा, बिकॉज इंटीजर में आंसर नहीं आ रहा है, नियरेस्ट टू द इंटीजर आ रहा है. ऑप्शन डी. हम जो सोच रहे थे वो इंटीजर में आ रहा होता तो फिर उसके हिसाब से सोच रहे थे, बट इंटीजर में आंसर नहीं आ रहा. क्लियरली आंसर विल बी ऑप्शन डी. इज दैट क्लियर? तो पहला सेट तो हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, अगले सेट पे चलते हैं. नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, सेट नंबर 2. अगेन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस फर्स्ट. दिस इज द सेकंड सेट, दिस इज द सेकंड क्लेस स्लिट, और questions are question number 1, then 2,
3 and 4. So pause the video and solve the set. फिर सॉल्यूशन को देखो. Okay. So start करते हैं अब. In companies A and B, the total number of employees is 3600. The ratio of number of employees in A to that of B is 5:7. Each employee works in only one of the three departments, P, Q and R. तो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, 2 कंपनीज हैं और बाकी कहानी है अगेन मेल और फीमेल का स्टोरी है. ठीक है, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमको. स्टार्ट करते हैं. सो टोटल एम्प्लॉइज आर 3600 इन कंपनीज ए एंड बी टोटल. ठीक है, टोटल इज 3600. The ratio of the number of employees in A to that of B is 5:7. A और B में जो रेशियो है that is 5:7. Total 12 is 3600. 12 units is 3600. तो 1 unit is 300. तो 5 will be 1500 and 7 will be 2100. Each employee works in only one of the departments P, Q and R. In company A, 60% of total employees are males. 60% of the total 1500 का 60% is 900. तो 900 are males. The remaining 600 must be females. Rest are females. Whereas in company B, ratio of males to females is 4:3. 4:3 का रेशियो है. टोटल 7 यूनिट है तो 2100 के बराबर. 7 यूनिट्स 2100 के बराबर है तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 300. यानी कि मेल्स आ जाएंगे 1200 और फीमेल्स आ जाएंगी 900. ओके. इन कंपनी ए 30% ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉइज वर्क इन डिपार्टमेंट क्यू. ए में 30% of total female employees work in department Q. 30% of 600 that is 180 work in department Q. 20% of the remaining, 20% of the remaining है, 20% of the total नहीं है, 20% of the remaining work in department R. बचा कितना? 600 minus 180 is 420 बचा है. तो 420 का 20% यानी कि 84 work in department R. And obviously जो बच गया हमारा 420 minus 84 यानी 400 minus 64 that is 336. They must be working in department P. ओके. ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी ए 40% वर्क इन डिपार्टमेंट पी. 40% ऑफ 900 दैट इज 360 वर्क इन डिपार्टमेंट पी. 40% हो गया. 2/9 ऑफ द रिमेनिंग. अब रिमेनिंग कितना बचा? 540 इज द रिमेनिंग. आउट ऑफ 540 2/9 वर्क इन डिपार्टमेंट क्यू. 540 का 2/9 इज 16 into 2 120. 120 वर्क इन डिपार्टमेंट क्यू. 540 minus 120 यानी कि 420 बचे हुए. दे विल बी वर्किंग इन डिपार्टमेंट आर. In company B, 1/3 of the male employees work in department R. 1/3 of 1200, which is 400, work in department R. अब ये जितना फटाफट तुम कर पाओगे परसेंटेज वगैरह, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना स्लो करोगे. तो जितना ज़्यादा चीज़ें मेंटली कर पाओ, परसेंटेज और रेशियो में कन्वर्जन, ये जितना फास्ट कर पाओगे उतना ही फास्ट तुम इस कैलकुलेशन को कर पाओगे. इसीलिए परसेंटेज के पोर्शन में आई एम्फोसाइज्ड कि परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन आपका बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि आप ऐसी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सको. ठीक है. सो गिवन है 1/3 400 हो गया. द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट पी इज 25% मोर देन वर्किंग इन डिपार्टमेंट आर. तो पी में 25% ज्यादा यानी 1/4 ज्यादा है, विच इंप्लाइज की पी और आर में मेल एम्प्लॉइज का रेशियो क्या होगा? 5:4 होगा. और 5 + 4 एक सेकंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट पी इज आर पी और आर में 5:4 होगा यानी कि पी में 500 होंगे. ठीक है, तो फिर क्यू में बच गया 300. Out of the female employees in company B, 60% work in department P. 60% of 900 that is 540 work in department P. The number of female employees in company B working in department Q is 90 more than number of female employees in R. Q is R plus 90 और टोटल है कितने Q plus R मिला के? 900 minus 540 Q plus R is 360. 360. तो 2R plus 90 is 360. So R में आ गया 135 और Q में आ जाएंगे 135 प्लस 90 दैट इज 225. तो सारी स्टोरी अपनी होगी क्लियर. ठीक है, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. यहां तक कोई समस्या? ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन वर्किंग इन डिपार्टमेंट आर, फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट आर इन कंपनी बी एंड मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट क्यू इन कंपनी ए. फीमेल आर इन बी, female are in B, female are in B, that is 135. 135. First value is 135. And second is male working in department Q in A, male QA is 120. That is 120. So 135 और 120 के बीच का difference is 15. Option A is the answer. Option A
इज द आंसर. क्लियर? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is saying the number of male employees working in department P in company A is what percent more than the number of female employees working in department Q in company B. So male employees working in department P in company A, so that is 360, and female employees working in Q in B, female Q B, that is 225. And question is saying कि मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट पी इन कंपनी इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज. तो 225 से दिस इज 135 ज्यादा, 135 मोर है, तो 135 225 का कितना परसेंट है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. 135 अपॉन 225 फ्रैक्शन में कितना आ रहा है, दिस इज 45 का 3 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, 3/5 60%. ऑप्शन ए. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. The total number of female employees working in department P and R in company A, females P plus R in company A, is what percent of total number of male employees working in department P plus Q in company B. तो कंपनी A में female P and R, that is 336 plus 84, which is 420, and males P and Q company B, so that is 500 plus 300, which is 800. And question is saying what percent, 420 is what percent of 800, that is what the question is. तो 420 800 का 50% तो हुआ 400, और 20 is 2.5%, तो 52.5% will be the answer. 50% is 400 and 20 is 2.5%, 52.5%. Clearly option B is the answer. Next question. That average number of male employees working in department R in both the companies is X. Average number of male employees working in department R. तो मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट आर इन कंपनी ए इज 420, इन कंपनी बी इज 400, तो एवरेज ऑफ बोथ ऑफ दीज इज 410. एवरेज इज 420 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, सो एक्स इज इक्वल टू 420 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, 410. देन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट पी इन बोथ द कंपनीज इज वाई, so that is 336 प्लस 540 डिवाइड बाई 2, सो वाई आ जाएगा हमारा 336 प्लस 540 डिवाइड बाई 2, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा. अच्छा देखो, जब भी एवरेज निकालना हो, अगर दो वैल्यूज हैं तो एक काम करो कि दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दो और ऐड कर दो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने के डिवाइड बाई 2 करके ऐड कर दो, जो आसान पड़े तुमको. 168 प्लस 270, तो दिस इज 370 प्लस 68 यानी कि 438. दिस इज 438. ठीक है, दिस इज 410, दिस इज 438. क्वेश्चन पूछ रहा है वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई. तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इनका 28, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज 28, और 28 आ रहा है हमारा 25 से 30 के बीच में, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियरली ओके. ठीक है, सो दोनों अच्छे सेट थे, बहुत मुश्किल नहीं थे, कुछ ज़्यादा मुश्किलात नहीं था, ईजी थे, बट समझना जरूरी था. क्लियर है. और अगर सेशन पसंद आया हो और ये समझ में आया हो कि कैसे हम कम समय में ऐसे सेट्स को कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस अपनी फास्ट करोगे, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन बढ़िया कर लोगे, और परसेंटेज को अच्छे से सीखना सीख जाओगे, रेशियोज को समझ जाओगे, तो क्वेश्चन फास्ट होना शुरू हो जाएंगे. और जितना ज़्यादा कैलकुलेशन मेंटली करोगे इंस्टेड ऑफ लिखने के, उतना ही फास्ट अप्रोच होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी धीरे धीरे समय के साथ में. ठीक है, अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट रहा है या किसी चीज़ में तुमको लगता है कि थोड़ा सा और एलेबोरेशन की जरूरत है, तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. ओके, और कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक करो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी एट ADITYAKT. जो भी doubts हो, concern ho, you can always ask them and you can join the group as well, that is CATZAT MBA. That's all for this session. Bye bye, take care.